I thank God for this word today I've heard. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो वचन आज मैंने सुना है उसके लिए। The running away from the presence of God. It was said the running away from the presence of God. यहाँ पर जैसे लिखा था, हमने जैसे सुना कि परमेश्वर की उपस्थिति के भागने के विषय में। I just take this seriously in this matter. और मैं इस बात में गंभीरता से in Luke chapter 8 verse 8 says the word of God fall on the good ground and sprang up and it's bears much fruit 100 times. और मैं बांटना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 8 वचन से, जहाँ जो बीज थे कुछ भूमि पर गिरे और उग कर वे 100 गुना फल लेकर आए। And on that verse Jesus said that if anyone has listening ear use them now. और उसके आगे वचन कहता है कि उसने ऊंचे शब्द से कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। Actually, a long time I had questions on my mind that why this farmer misused a good quality seed to sow the footpath or low soil rock. और कई बार मेरे मन में ये पहले विचार या प्रश्न रहा करता था कि क्यों ये किसान अच्छे जो बीज क्यों उसको इस तरह से इस्तेमाल किया कि कहीं सड़क के किनारे उसको डाला, कहीं बार पथरीली जमीन थी उसके ऊपर उसने उसको डाल दिया। In this parable, Jesus said the farmer went out his field. और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि वो जो किसान जो था वो अपना जो खेत वहां पर जाने के लिए वो निकला। And I look back this scripture again, and this parable begins that the grains are sowed in the whole part of the 4 types in the same field. और वहां पर ये 4 प्रकार की जो भूमि यहाँ पर है वो 4 प्रकार को दिखाता है। The same farmer, same time, same grain, and same field. और वहां पे वही किसान है, वही जमीन है, उसी प्रकार एक ही प्रकार के बीज हैं। And there is a space that where the farmer can walk. It's called footpath. और वहां पर इस प्रकार से जो सड़क जो होती है वहां पर उसने वहां पर बीज को बोया। And when I meditate that during that time that it is not the intention of the farmer to sow in the footpath or in the thorn or in the low soil portion. और मैंने इस बात को देखा कि यहाँ पर किसान का कोई इरादा नहीं था कि जानबूझकर उसने ऐसी जमीन पर जहाँ पथरीली या कांटीली जमीन थी या फुटपाथ था वहां पर उसने बीज को बोया। But maybe most of the seeds can fall on the good ground. और हो सकता है कि बहुत सारे जो बीज है वो अच्छी भूमि पर गिरे। And when I heard this parable, immediately I thought that I myself as a good ground. और इस बात को जब मैंने इस दृष्टांत को सुना तो मैंने अपने बारे में इस प्रकार से सोचा कि मैं एक अच्छी भूमि के समान मेरा जीवन है। Because my religious activity or attending meetings or listening messages etc. क्योंकि मेरी धार्मिक गतिविधियां है या मेरे जो सभाओं में भाग लेना, संदेश इस कारण से in the scripture says that the good ground is the portion of the field that indicates the good quality of the soil. और यहाँ पर जो अच्छी भूमि है वो ये दर्शाता है वचन कि वो अच्छी गुणवत्ता से भरी हुई जमीन को दिखाता है। And we know that the soil have the different parameter to examine. और यहाँ पर उस जमीन को नापने के लिए अलग-अलग नापदंड दिए गए। Yeah, the minerals contained or water bearing capacity etc. और वहां पर जितना वो यहाँ पे हो सकती है या पानी सींचने की उसकी जो क्षमता है। In Luke chapter 8 verse 15 says the characteristics of the people of good soil. और लूका 8:15 के अंदर जो अच्छी भूमि के जो लोग हैं या जिस प्रकार के वे लोग उनकी योग्यता या गुण को दिखाया गया है यहाँ। And I meditate that there are at least 4 points that honesty, honest and good heart, and having heard the word and keep it and use it in due time, and last was the bearing fruit with much patience. और यहाँ पे लिखा है कि वे वचन सुनते हैं, उत्तम मन से उसको संभाले रहते हैं, और अंत में लिखा है कि धीरज से वो फल लाते जाते हैं। So that's why I just encourage brother sister. I want to check our soil condition through this parameter.
और मैं ये अपने आप को जांचना चाहता हूं कि मैं इस जमीन के मापदंड से अपने जीवन को जांचना चाहता हूं। And I discovered many times that I have pretend to be a good soil, but the quality of the good soil is honesty, good heart, and having heard the word and keep it, and also have less patience. और मुझे अपने आप को जांचना है जब मैं उस बीज को बोता हूं तो किस प्रकार उसको, क्या मैं ईमानदार मन है, क्या एक अच्छा हृदय है, या उत्तम मन से मैं उसको संभाले रहता हूं, या धीरज से उन बातों को फल लेकर आने देता हूं। And we heard in CFC message that we first want to be honest people. और सबसे पहले सीएफसी में हम यही संदेश या बातों को सुनते कि यीशु सबसे पहले उन ईमानदार लोगों की अपेक्षा करता है। And the second characteristic I see that the good-hearted people of और good. और लोगों की तीसरी गुण की यहाँ पर जो है वो अच्छा हृदय उनका। And we know that lots of example in the Bibles, that lots of example in the good-hearted people in the Bible. और हम जानते हैं कि उस उदाहरण को, जो अच्छे और भले हृदय का उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। And if we have good heart, that the word of the God can be stored safely. और यदि हमारे पास एक अच्छा हृदय है तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर सींचा जा सकता है, रखा जा सकता है। Otherwise, there will be leakage of the word of God from the heart. और यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में से पूरी तरह से निकलता जाएगा, उसमें लीक होगा। Because the good soil have a quality to water bearing, otherwise it will dry the soil. और क्योंकि अच्छी भूमि जो होती है वो पानी को सींचे रखने की गुणवत्ता उसमें होती है, यदि ऐसा नहीं तो वो सूख जाएगी भूमि। Good heart know that the place where God can dwell in us. और ऐसा एक हृदय जहाँ परमेश्वर निवास कर सकता है हमारे भीतर। And sometimes I sing a song, that the change my heart, oh God, make it ever true. और जैसे मैं उस गीत को गाते, कई बार मैं गाता हूँ कि प्रभु तू मेरे हृदय को बदल और इसे तू सच्चा बना। Another third point I've seen that we heard the word, keep it and use it in time. और तीसरी गुणवत्ता जो यहाँ पर जो गुण है वो अपने वचन को सुनते, उसको रखते और उसको करते हैं। In Roman chapter 10 verse 17 says that we need to hear the word of God because it grows our faith. Roman 10:17. रोमियो की पत्री 10:17 में लिखा है कि इसलिए हम परमेश्वर का वचन जो है वो सुनने से है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Yeah, and we also know that Revelation chapter 1 verse 3 that this book that the blessed are those who read and listen and use in the life. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन में है लिखा है कि धन्य वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। I take myself, if our heart is not good, that the word will store in our head. और यदि हमारा हृदय अच्छा नहीं है तो जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग, मस्तिष्क में हम उसको बनाए रखेंगे। And we know that the fact that we become more religious people because we know the word. क्योंकि हम वचन को जान चुके हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क में, तो हम और अधिक धार्मिक बन जाएंगे। And another last point is that it bears good soil that bear much fruit with patience. और अंतिम जो लिखा है, अंतिम गुण जो लिखा है कि जो अच्छी भूमि जो है वो धीरज के साथ और अधिक ज्यादा फल लेकर आता है। Which is the vital part of the farming, that we need the fruit during the harvest time. और इस बात को जब हम उस खेत को जोता या बोया जाता है तो इस गुण की आवश्यकता होती है कि हम धीरज को धरे। And last week we heard from Brother Abu that how to be patient and perseverance last week. जैसे पिछले सप्ताह भाई अबू से हमने सुना था कैसे धीरज धर के हमको आगे बढ़ना है। The perfect example is Jesus. और उसका उत्तम उदाहरण जो है यीशु मसीह है, the man of patience. और जो एक धीरज का मनुष्य था। And we know in Matthew chapter 11 verse 29 that learn from me, Jesus said. और यीशु मसीह मत्ती 11:29 में कहते हैं कि तुम सीखो। And we know that in Romans, Paul says in Romans 15 verse 5 that God is God of patience. और रोमियो की पत्री 15:5 में कहता है कि धीरज धरने वाला वो परमेश्वर वो, And he can give the patience abundantly.
और वो धीरज का दाता है, और वो हमें बहुत ही अधिक वो धीरज को दे सकता है। And the same chapter in same book, Romans 2:7, I have seen that He will give the eternal life to those who patiently do the will of God. In Romans 2:7. रोमियो 2 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि जब हम उस धीरज को धरते हैं, उस धीरज में जब हम रहते हैं, तो परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन का वरदान देगा। And few weeks before, we have a memory verse in 1 Thessalonians 5:14. It says, "Be patient with all men." और पहला थिस्सलुनीकी 5:14 के अंदर जैसे हमने उस मेमोरी वर्स को सुना था कि हमें और भी लोगों के साथ जो है वो सहनशीलता या धीरज को दिखाना है। That's why, brothers and sisters, I want to encourage me and on all that let us bear much fruit with patience till the harvest. इसलिए प्रिय भाई और बहनें, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम उस धीरज के साथ और अधिक फसल को उपजाए। We heard the word seriously और हमने गंभीरता से उस वचन को लिया with a good heart and be honest. और हम उसको एक अच्छे हृदय के अंदर ले और उसके प्रति ईमानदार रहे। And of course, there are many other parameters like a soil that we need to grow the other characteristics. और जैसे उसके अलग अच्छी भूमि को और भी नापदंड हो, तो को हमारे अंदर आने देना है। Thank you, brother. Matthew chapter 9 verse 13, वहाँ पे ऐसा लिखा है, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. तो आज जो अबू ब्रदर ने शेयर किया वो मुझे बहुत ही ज्यादा मैं वो सुन के बहुत ही एंकरेज हुई और बहुत ब्लेस्ड हुई। और मुझे ये वाक्य, यीशु ने जो ये वाक्य कहा था, फरीसी लोग जब कह रहे थे कि तू पापियों के साथ क्यों और जो चुंगी लेने वालों के साथ तू क्यों खाता है और पीता है, तब यीशु ने उनको ये जवाब दिया कि मैं मतलब सैक्रिफाइस मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दया चाहिए। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कई बार हम बहुत हमारी जो बाहर की चीजें हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों पर तरस नहीं खाते। दूसरे मतलब हमारे शायद हम बाहर से उनको कुछ नहीं बोलते होंगे, हमारे मुंह से कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन मन ही मन हम उनको तुच्छ जानते हैं, या हम अपने आप को उनसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा आत्मिक हूँ। ऐसे हम मन ही मन में हमारा हृदय इस प्रकार का हो जाता है। और ये भी एक परमेश्वर के सामने ये भी एक गलत चीज है। इससे हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है और हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आज जो ब्रदर ने जो शेयर किया कल, उसके ऊपर से मैं एक और बात कहना चाहूंगी। एक ब्रदर है जिनके द्वारा मैंने कल बहुत सुंदर बात सुनी जो मुझे बहुत ज्यादा टच किया। तो वो ब्रदर ऐसा बोल रहे थे कि परमेश्वर से हमें इस तरह प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू हमें नम्र बना, हमारे हृदय को प्रेम से भर दे, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको हम देखते हैं तो उनको परमेश्वर की नजर से देखें। जैसे परमेश्वर जो नजर से हमको देखता है उसी सेम नजर से हम दूसरों को देखें, चाहे वो कितने भी पाप में जीते हो, या फिर हमें हमारा एक नजरिया बना हो इस व्यक्ति के लिए कि हाँ ये व्यक्ति इतना ही आत्मिक हो सकता है या ये व्यक्ति इतना ही लेवल का है। हम कोई भी नहीं है किसी को अपने एक नजरिया बनाकर रखने के लिए, क्योंकि सबका गुप्त जीवन परमेश्वर के सामने गुप्त नहीं है। परमेश्वर के सामने सबका गुप्त जीवन ओपन है, तो परमेश्वर उनके गुप्त जीवन को जानता है। इसलिए मन ही मन में न्याय करना भी परमेश्वर की नजर में गलत है। मन ही मन में दूसरों को तुच्छ जानना भी परमेश्वर के नजर में गलत है। इसके द्वारा ये चीज से एक एक्सहॉर्टेशन, एक चेतावनी के रूप में मैंने इसको लिया, और साथ ही साथ दूसरों पर तरस खाने का जो विषय है, सच में मैंने बहुत एंकरेज हुई। थैंक यू। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वीक में मुझे एंकरेज हुआ जब एक पिकनिक में गए थे, तो एक एंकरेज मेरे जीवन में हुआ कि जब हम खेल रहे थे तो मेरा पैर जब जाते समय स्लिप हुआ, तो मुझे उसमें प्रभु ने ये बात किया मेरे मन में कि जब हम गिर जाते हैं तो हम चुनौती देते हैं दूसरों को कि तुम इस रास्ते से नहीं जाना, तुम स्लिप हो जाओगे। तो उसी तरह हर एक परीक्षा में भी हम कई बार गिरते हैं, तो हम
दूसरों के लिए एक एंकरेज का कारण ठहर सकते हैं। जैसे मनुष्य है, हर एक के जीवन में जो परीक्षा आती है, सेम परीक्षा से हम भी कई बार गुजरते, उससे पार हो जाते, तो उसमें एक एंकरेज मिलता है कि हम दूसरों को बोल सकते हैं कि हाँ हमने इससे पार किया है, आपको भी एक मिलेगा सामर्थ, प्रभु देंगे। तो इस वजह से मुझे बहुत एंकरेज हुआ याकूब का 1:2 में, है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो प्रभु हमको जो भी परीक्षा में, हम इस समय जो संसार में जीते, हमारे भाई बहन जो भी परीक्षा में जाते, इससे हमें पूरा आनंद की बात समझना है। पहले मैं इस बात को समझ नहीं पाती थी, हमेशा प्रभु ऐसा क्यों करके प्रभु से सवाल करती। इससे मुझे बहुत एंकरेज हुआ उस शब्द से जो प्रभु ने मुझसे हृदय में बात किया कि हम दूसरों के लिए एक लाइट बन सकते हैं। जब हम खुद उस परीक्षा में जाएंगे तो हम दूसरों को उठा सकते कि हाँ एक मार्ग बता सकते। जब तक हम खुद उससे सामना नहीं करेंगे तो हम दोष लगाएंगे या किसी और नजर से दूसरों को देखेंगे। तो इससे मुझे हृदय में बहुत एंकरेज हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आमीन। The memory verse is from Hebrews 12:15. Says, see to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up cause trouble, and by it many be defiled. और जो मेमोरी वर्स जो था इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 15 वचन से था, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। And the previous verse says, pursue peace with all men. और उसके पहले का वचन 14 वचन में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप तुम रखो, And the sanctification without which no one will see the Lord. और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। I was just reading about the last days which Jesus spoke. और मैं पढ़ रहा था यीशु मसीह ने जो अंतिम दिनों के बारे में जो बातें कही उसके संबंध में। Jesus said one thing, that the love of many will grow cold. और यीशु मसीह ने एक बार वहां की कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। And that is what will happen to me also, can happen to me also. और ये मेरे साथ भी हो सकता है। The love towards God and the love towards other people can grow cold. और मेरा परमेश्वर के प्रति प्रेम और जो भाई या लोग हैं उनके प्रति मेरा प्रेम ठंडा हो सकता है। And one thing which can make it cold is when I cannot forgive them. और एक रीति से जहां पर ये प्रेम ठंडा हो सकता है वो इस कारण है कि मैं जब अन्य लोगों को माफी नहीं दे सकता या नहीं कर सकता माफ। And now it is not such a difficult time. और अब ये इतना कोई कठिन समय नहीं है। But there will be more difficult times in the days to come. लेकिन आने वाले दिनों में और भी कठिन समय आएंगे। Especially for those who want to follow Jesus, there will be persecution. और खास करके वे लोग जो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहेंगे वे सताए जाएंगे। And people will trouble us in many ways. और लोग कई प्रकार से हमें समस्या देंगे या हमें सताएंगे। And if I cannot face that small provocation today, or so small insult which I receive here and there, that time I will be really shaken. यदि आज के दिन में मैं ये छोटा सा जो लोगों द्वारा उस्काना या प्राप्त नहीं है, उस दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। So I was just thinking that I need to prepare myself in that way to love everyone. और मैं सोच रहा था कि मुझे अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखना है कि मेरे पास और अन्य लोगों के लिए भी पर्याप्त प्रेम हो। There should be no like it says, root of bitterness. That means not a smell of bitterness in my heart. और जैसे इस वचन में लिखा है कि कड़वी जड़ हमारे अंदर, मेरे हृदय के अंदर न हो, यहाँ तक कि उसकी गंध तक न हो। Amen. आमीन। We thank God for
what we heard today, all the words. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो बातें आज हमने सुनी उसके लिए। We heard about the life of Jonah, हमने योना के जीवन से बातें को सुना, how he didn't understand the heart of God. और कैसे योना परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाया। Even though he spoke what God wanted him to say, his heart was not changed. और यहाँ तक कि जो परमेश्वर चाहता था उन्हीं बातों से योना ने बात की, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित नहीं था। As we heard that the Lord who has compassion, God wanted Jonah to have compassion on the people. जिससे हमने सुना कि परमेश्वर जो करुणामय है, परमेश्वर चाहता था कि वही करुणा या दया तरस योना लोगों के प्रति दिखाए। He just spoke from his mouth, but his heart was not changed. और योना ने केवल अपने मुख के द्वारा उन शब्दों को बोला, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ था। What I need to develop, but God has to do a work in me that my heart is changed towards people. और परमेश्वर को मेरे जीवन में उस काम को करने देना है जिससे कि मेरा हृदय भीतर से परिवर्तित या बदल जाए। I see when God shows me, when God teaches me something that should develop in me, God's nature should come in my life. अब जब परमेश्वर मुझे किसी बातों को सिखाता है, दिखाता है, तब परमेश्वर का स्वभाव जो है मेरे भीतर आना चाहिए। The taste of the mercy of God, when I have it, then I should be merciful to others. और जब मैं परमेश्वर की दया के स्वाद को चख चुकूंगा तो वही स्वाद, वही दया को मैं औरों के प्रति दिखाऊंगा। When I see the compassion of God towards me, how much compassion He has been to me, then the Holy Spirit has to do a work that compassion will be seen towards my compassion to others. और जब मैं इस बात को जान जाऊंगा कि जो तरस, जो परमेश्वर की करुणा जो मैंने प्राप्त की है मेरे जीवन, उस मात्रा को, तब पवित्र आत्मा मेरे भीतर कार्य करेगा ताकि उसी करुणा से मैं और लोगों को देख सकूं या उनको दिखा सकूं। Just like it says in the Gospels that be merciful just as I am merciful. जैसे हम सुसमाचार में सुनते हैं कि तुम दयावंत बनो जैसे कि मैं दयावंत हूँ। Merciful to the worst of sinners. Jesus was merciful to the worst among us. और जैसे यीशु मसीह सबसे बदतर पापी की और भी दयावता। Lord, help me to see how much merciful you had been to me so that I can be merciful to others. और प्रभु तू मेरी सहायता कर कि कितना अधिक तू मेरे प्रति दयावंत है, जिससे कि प्रभु मैं औरों के प्रति भी उसी दया को दिखा सकूं। Help me to see the forgiveness that Jesus had for me and for others, and help me to learn from you how you are forgiving and have the same nature. और प्रभु मेरी मदद कर कि प्रभु कितना अधिक तूने मेरे लिए और अन्य लोगों के प्रति कितना माफ करने वाला है, कि प्रभु मेरी सहायता कर उसी स्वभाव को मेरे जीवन के अंदर में रख सकूं। You didn't have a wrong attitude towards Judas Iscariot who betrayed you even though he walked with you. और यहाँ तक यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह के साथ चलता था, फिर भी प्रभु को धोखा देने के बाद भी प्रभु उसके प्रति कोई कड़वाहट यीशु मसीह के हृदय में नहीं थी। He could still say, friend, do what you have come for. और उसके बावजूद भी यीशु मसीह यहूदा से कह पाया कि हे मित्र, जो तू करने आया उसे तू कर। It is not just something that I speak from my mouth, but God, Jesus' heart was not having anything wrong. He had the love of God in his heart. और ये अपने केवल मुख से बोलने वाले शब्द नहीं थे, लेकिन उसके हृदय के अंदर वो प्रेम था और कोई भी किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं थे हृदय में उसके। May God help us to have the humility of Jesus, humility in our hearts, so that we can have a right attitude towards everyone. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे हृदय में एक सच्ची नम्रता हो, ताकि हमारा स्वभाव और लोगों के प्रति व्यवहार सही हो सके। Paul says in 1 Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कहता है 10th verse, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove in vain. But I labored. पहला कुरिन्थियों 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। Yet not I, but the grace of God with me. तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ। Paul labored more than anyone because the grace of God was on his life. क्योंकि पौलुस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था, उसने सबसे बढ़कर अधिक परिश्रम किया।
when God gives me grace, it should make me not to waste away that opportunity, but to be serve Him with all my heart. जब प्रभु मुझे अनुग्रह देते हैं, उस मौके को व्यर्थ न करते हुए अपने पूरे हृदय से मैं उसकी सेवा कर सकूं। We can repent today of any area where we have let down the Lord, and the Lord is very eager to forgive us and bring us back. और आज हम परमेश्वर को माफी मांग सकते हैं या मन फिरा सकते हैं क्षेत्रों के अंदर जहां पर हमने उसको नीचा किया है, और आज वो हमें माफ करेगा। He is able to restore that relationship with Him and encourage us to walk this way again. और उसके साथ उस संबंध को पुनर्स्थापित करने में हमारी सहायता करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा उस मार्ग में और एक बार चलने के लिए।